Today we will discuss insert operation in singly linked list. So there are three cases of insert operation in a singly linked list. First case is insert at the beginning of the linked list. Insert at the beginning of the linked list means just after the head. Head is pointing to the first node. So initially, whatever linked list we will have, so in this case, we will insert the new node. We have to first create the new node, and then we have to insert the new node in the list, in the existing list, and we have to then change the pointer adjustment. So the head will now point to this new node, and the new node will point to the existing first node, the node which was the beginning node earlier. So this is your insert at the beginning. Then insert at the end. This is another case. Insert at the end means we have to insert the node at the end of the list, right? Then the last one is insert at ith position. So at any random position, you can also insert a node. So three cases are there. So first of all, you have to create a node. Then you have to assign data value to that node, and then you can insert. Okay. So let us discuss these three cases. So first case we'll discuss. First case is the insert at the beginning of the linked list, right? I can see here, this is existing linked list. It is having one node, two nodes it is having. This is the first node, this is second node, this is the last node, right? And this is head. Head is pointing to this first node. I can see this is the old linked list. You can see old link. So this old link is pointed by this head node. Head is pointing to this first node. Head is the external pointer. So this is the existing linked list. Now we want to insert a new node at the beginning of this linked list. So first of all, you have to create the new node, and then you have to assign the data value to that new node, and then you can insert this new node in this existing linked list. And while inserting this new node, we have to make the changes in the pointer, because now this is the new node. This is the new node, and while creating this new node, we store address of this new node in a pointer known as ptr. So ptr is the pointer which stores address of this node. How to create this node, how to allocate memory for this node? By using malloc function. You can use either malloc function or you can use calloc function also. And after that, node will be created, and the starting address of the node will be returned by the malloc or calloc function, and that address can be stored in a pointer variable, and this is the pointer variable ptr. So it stores address of this new node. Okay. Now this node also having two fields. This is the data field. This is the pointer to the next node field. Okay. Now if we want to insert this node at the beginning, then what to do? We have to make this field to store address of this node, because this node was the first node in the old linked list. Now if you want to insert this, if you want to make this as the first node, then address field of this node should be address of this node. So this will be the pointer to this node, and this head pointer should point to this node. That means address of this node should be stored here in this pointer head. So this is the new link now. It was the old link. It should be disconnected, and head should point to this new node, and this new node should point to this node. And this node is as it is. Now how to do that? You see here, I told you that this is the new node and its address is present in this PTR pointer variable PTR. So
Now the next field of this node should contain address of this node. Now address of this node is initially present in this head pointer, right? So that we are assigning is here, you see, ptr arrow next, ptr arrow next equals to head. Why we are assigning head? Because head contains address of this node. That's why ptr arrow mark next equals to head. So this is done here for this. So this field is assigned address of this node. You see, that is done here. And then what to do? This head should point to this node. That means this head should contain address of this node. Now address of this node is present where? Where it is present? Address of this node is present where? Tell me. This node's address, where it is present? Tell me, students. On the green zone. Huh? Address of this new node is present in which pointer or which variable? Head point. कहाँ पे? pointer. नहीं, अभी तक हेड में नहीं आया है, हेड में असाइन करेंगे, लेकिन इसका इनिशियली इसका एड्रेस कहाँ पे है? इस नोड का पीटीआर में है। तो अगर तुम हेड में इसका एड्रेस रखना चाहते हो तो कैसे लिखोगे? हेड इक्वल्स टू पीटीआर लिखोगे। समझ में आया? है कि नहीं? Yes, sir. Yes, sir. So this is how we can insert a new node at the beginning of the linked list. So now this node is pointing to this node and head is pointing to this new node, right? इनिशियली क्या करते हो तुम लोग? नया नोड यहाँ पे बनाते हो और इस नोड का एड्रेस पीटीआर में रखते हो, ठीक है ना? और हेड अगर इसको पॉइंट करेगा उसका मतलब क्या है कि हेड में इस नोड का एड्रेस रखना है, तो इस नोड का एड्रेस तो पीटीआर में है, तो पीटीआर को असाइन कर लो। देखो हेड इक्वल्स टू पीटीआर, और ये नोड इसको पॉइंट करेगा, तो ये कैसे पॉइंट करेगा? ये नोड का जो नेक्स्ट फील्ड है ये वाला, पॉइंटर टू नेक्स्ट नोड फील्ड, ये वाला, इस यहाँ रखना है क्या है? इस नोड का एड्रेस रखना है। तो इस नोड का एड्रेस कहाँ पे है, कहाँ से मिलेगा? इस नोड का एड्रेस पहले यहाँ पे था, तो उसी को यहाँ पर असाइन कर लिया। देखो ये वाला पीटीआर आरो मार्क नेक्स्ट, ये वाला पीटीआर आरो मार्क नेक्स्ट, ठीक है ना, इक्वल्स टू हेड। ये जो है डेटा फील्ड, ये है पॉइंटर टू द नेक्स्ट फील्ड। तो ये डेटा फील्ड को कैसे एक्सेस करेंगे? पीटीआर आरो मार्क डेटा। और ये नेक्स्ट फील्ड को कैसे एक्सेस करेंगे? पीटीआर आरो मार्क नेक्स्ट। ठीक है, ये समझ में आया? अगर समझ में आया, नहीं आया तो बोलो, मैं ग्राफिकली करके बताऊंगा। और एक एग्जांपल लेके एग्जाम्पल, ठीक है, ठीक ठीक। ओके, सपोज ऐसा है हमारे पास एक लिंक लिस्ट है, ये एक नोड है, ये और एक नोड है, ये और एक नोड है, 3 नोड है, ठीक है। अच्छा, ये नोड का 2 फील्ड है, ये डेटा फील्ड और ये पॉइंटर टू नेक्स्ट फील्ड, इसका भी 2 फील्ड है, इसका भी 2 फील्ड है। अच्छा, अभी ये सारे नोड का एड्रेस, मान लो इसका एड्रेस है 100, इस नोड का एड्रेस है 100, इस नोड का एड्रेस है 200, इस नोड का एड्रेस है 300, ठीक है। अच्छा, लिंक लिस्ट में क्या होता है? एक हेड होता है, हेड एक्सटर्नल पॉइंटर एक होता है ये वाला, और ये किसको पॉइंट करता है? ये पॉइंट करता है इसको, इसको पॉइंट करता है। सो इट्स ए पॉइंटर। तो ये क्या करता है? किसका एड्रेस इसमें रहता है? ये वाला, ये है तुम्हारा हेड, फर्स्ट नोड पर। हाँ हेड, दिस इज हेड। तो फर्स्ट नोड का एड्रेस कितना है? 100। 100, यहाँ 100 लिखो, 100। ओके, अच्छा ये मान लो ये फर्स्ट नोड में डेटा है 5 इज द डेटा, ठीक है। तो ये डेटा फील्ड हो गया।
सभी नोड में दो फील्ड होते हैं, एक हो गया डेटा फील्ड, दूसरा क्या है पॉइंटर टू नेक्स्ट फील्ड, मतलब एड्रेस, नेक्स्ट फील्ड का एड्रेस यहाँ रहता है, नेक्स्ट नोड का एड्रेस यहाँ पे रहता है, ये जो फील्ड में। तो इसका नेक्स्ट नोड कौन सा है, ये वाला, ये इसका नेक्स्ट नोड, इसमें मैं एरो मार्क दे रहा हूँ, नेक्स्ट नोड, इसका नेक्स्ट नोड ये है, और ये लास्ट नोड है। तो लास्ट नोड में क्या रहता है, लास्ट नोड का एड्रेस फील्ड क्या रहता है, पॉइंटर टू नेक्स्ट फील्ड जो एड्रेस नल रहता है, ठीक है, ये लास्ट नोड है। ये वाला जो बताऊं मुझे, ये पहला नोड है फर्स्ट नोड, तो फर्स्ट नोड, ये सेकंड नोड, ये नोड 1, नोड 2, ये नोड 3। तो नोड 1 किसको पॉइंट कर रहा है, नोड 2 को। तो नोड 1 का जो पॉइंटर टू नेक्स्ट फील्ड ये वाला है, यहाँ पर क्या रहेगा, 200 200 रहेगा। नेक्स्ट नोड का इसका एड्रेस रहेगा यहाँ पे, तो 200 यहाँ लिखता हूँ, देखो 200, ओके। अच्छा मान लो इस नोड में, ये सेकंड नोड है, इसमें मान लो डेटा है 7, ठीक है। ये पहला फील्ड जो डेटा फील्ड में 7 है डेटा, और ये नेक्स्ट फील्ड जो है इसका, इसमें क्या रहता है, एड्रेस ऑफ नेक्स्ट नोड। तो इसका नेक्स्ट नोड कौन सा है, ये वाला 300, इसका एड्रेस यहाँ पे रहेगा, इसका एड्रेस कितना है 300. 300, ठीक है। तो ऐसा सिचुएशन हमारे पास है, ये है तुम्हारा ओरिजिनल लिंक लिस्ट। अभी हमें इसमें क्या करना है, एक नया नोड इंसर्ट करना है, और कहाँ पे इंसर्ट करना है, बिगिनिंग में, बिगिनिंग में, यहाँ पर बिगिनिंग में इंसर्ट करेंगे, मतलब क्या है, हेड पॉइंट करेगा उस नया नोड को, और वो नया नोड पॉइंट करेगा किसको, इस नोड को। अब ये बन जाएगा सेकेंड नोड, ये बन जाएगा सेकेंड नोड, है कि नहीं। मान लो कि मैं एक नोड बना रहा हूँ यहाँ पे, ये वाला मैं नोड बनाया, ठीक है। इसका भी दो फील्ड होगा, एक हो गया डेटा फील्ड, मान लो डेटा है, ओके, यहाँ पर जो डेटा मैंने नहीं लिखा है, यहाँ मान लो डेटा 8 है, और यहाँ पर ये जो नया नोड मैं बना रहा हूँ, न्यू नोड, इसमें डेटा मान लो है कितना, 11, ठीक है। और इस नोड को मैंने बना, इस नोड को मैं बनाने के लिए मैलोक फंक्शन यूज़ करूँगा। मैलोक फंक्शन यूज़ करने के बाद इसमें ये बन जाएगा, मेमोरी एलोकेट हो जाएगा नोड, और इसमें दो फील्ड हैं, एक डेटा फील्ड और दूसरा पॉइंटर टू द नेक्स्ट नोड फील्ड। डेटा फील्ड में मैंने 11 असाइन कर लिया, ठीक है ना। अच्छा, ये नोड जो मैंने बनाया है, इसको मेमोरी एलोकेट हुआ है, और इस जो मेमोरी एलोकेट हुआ है उसका स्टार्टिंग एड्रेस मैलोक फंक्शन रिटर्न करेगा, ठीक है ना। तो वो एड्रेस मान लो यहाँ पर 400 हेलो सपोज, सर। हाँ सर सपोज, हम जो न्यू 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 लोकेशन जो हम क्रिएट करेंगे, वो भी हाँ वो भी स्ट्रक्चर होना चाहिए, वो भी स्ट्रक्चर हाँ का हाँ हाँ, ये सारे नोड है ना, नोड मतलब स्ट्रक्चर, नोड मतलब स्ट्रक्चर यूज करना पड़ेगा, ठीक है ना। ये सभी नोड एक एक मतलब वेरिएबल ऑफ वन स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर का वेरिएबल है ये, ठीक है। और स्ट्रक्चर में दो फील्ड मैंने असाइन डिक्लेयर किए हैं, एक डेटा फील्ड, दूसरा पॉइंटर टू नेक्स्ट फील्ड। तो ये डेटा, ये पॉइंटर टू नेक्स्ट फील्ड, डेटा पॉइंटर टू नेक्स्ट फील्ड, ठीक है ना। इसमें भी ये जो नोड हम बनाएंगे वो भी स्ट्रक्चर यूज करके बनाएंगे, ठीक है ना। इसमें डेटा रहेगा और पॉइंटर टू नेक्स्ट फील्ड रहेगा, ये हो गया डेटा तुम्हारा 11, ठीक है ना। तो इसमें डेटा हमने इंसर्ट कर दिया 11, और इसका एड्रेस है मान लो 400, इस नोड का एड्रेस है 400, मतलब हमने जो मेमोरी एलोकेट किया है इस नोड को, उस मेमोरी का स्टार्टिंग एड्रेस है ये वाला 400। इन नोड जो हमने बनाया है, इस नोड का एड्रेस है 400, समझ रहे हो मेरी बात। और नोड कैसे बनाते हैं, मैलोक फंक्शन यूज करके बना सकते हो, ठीक है ना। तो ये नया नोड हमने बना लिया, इसका एड्रेस 400 है, ठीक है। तो इस नोड को हमें अभी बिगिनिंग में रखना है, इंसर्ट करना है बिगिनिंग में यहाँ पर। तो अगर बिगिनिंग में इसको इंसर्ट करोगे तो क्या होगा, हेड पॉइंट करेगा इसको, और ये किसको पॉइंट करेगा, इसको। पहले इनिशियली क्या था, ये वाला फर्स्ट नोड था, ये सेकंड नोड था, ये थर्ड नोड था। अभी इसको इंसर्ट करने के बाद क्या होगा, ये बन जाएगा फर्स्ट नोड, ये बन जाएगा सेकंड नोड, ये थर्ड नोड, ये फोर्थ नोड बन जाएगा, है कि नहीं। तो इसको अगर तुम बिगिनिंग में इंसर्ट करोगे तो कैसे करोगे ना, ये वाला पॉइंट करेगा, इसको कट करना पड़ेगा, ये कट हो जाएगा, ये लिंक। अब ये इसको पॉइंट नहीं करेगा, ठीक है ना। ये हेड नोड है, हेड हर घड़ी किसको पॉइंट करता है, फर्स्ट नोड को। तो ये पॉइंट करेगा अभी इसको, ये इसको पॉइंट करेगा। तो ये इसको पॉइंट करेगा, मतलब क्या है कि हेड में एड्रेस रहेगा, इसका इसका एड्रेस रहेगा, है कि नहीं। तो इसको चेंज करना पड़ेगा,
100 था, पहले ये इसको पॉइंट कर रहा था इसलिए 100 था, अभी इसको पॉइंट नहीं कर रहा है, कट कर दिया हम, तो ये वाला यहाँ पर क्या कौन सा एड्रेस रहेगा बताओ मुझे? सर 400। 400 रहेगा, तो यहाँ मैं 4 लिख रहा हूँ, इसको मैं 4 कर लिया। ठीक है, तो ये 400 हो गया, ये अभी इसको पॉइंट कर रहा है। अच्छा, ये नोड किसको पॉइंट करेगा बताओ मुझे? 100 को पॉइंट करेगा। 100 को, मतलब ये वाला जो नोड है इसको पॉइंट करेगा, तो ये वाला ऐसे पॉइंट करेगा इसको, ऐसे। ठीक है, इसको पॉइंट कर लिया, तो इसका जो नेक्स्ट फील्ड का एड्रेस है, ये वाला एड्रेस, ये कितना रहेगा एड्रेस? एड्रेस फील्ड पॉइंटर फील्ड में कितना रहेगा? 100 रहेगा सर। 100 रहेगा, तो यहाँ 100 लिखो, ये 100 हो गया। समझ में आया? समझ में आया कि नहीं? Yes, sir. Okay. So this is how we can insert a new node at the beginning of the linked list. So now, okay. Yes. So now you see here, originally in this diagram you can see we had these two nodes, and this was pointing, this head was pointing to this first node, this is the old link. Now if we want to insert this node, new node, the now head should point to this node and this node should point to this node. Okay, so that is done. Here you can see ptr arrow mark next equals to head. ठीक है ना, ptr arrow mark next equals to head। देखो यहाँ पर हम असाइन किए थे ना, हेड पहले कितना था? पहले कितना था हेड का वैल्यू? 100 था कि नहीं? ये देखो 100 यहाँ पर असाइन कर दिए। ये वाला मान, अगर ये पीटीआर है, अगर इफ दिस इज पीटीआर, इफ दिस नोड इज पॉइंटेड बाय पीटीआर, तो ये पीटीआर का नेक्स्ट नोड का नेक्स्ट फील्ड का वैल्यू है, ये 100 हो रहा है ना, ठीक है ना, तो ये 100 पहले कहाँ पे था? ये हेड में था, तो उसी को यहाँ असाइन किया। ठीक है, तो ये वाला पीटीआर और हमारा नेक्स्ट इक्वल्स टू हेड हो गया। अच्छा, हेड पॉइंट कर रहा है इसको, इसलिए हेड इक्वल्स टू पीटीआर कर दिया, क्योंकि पीटीआर का वैल्यू हम इसमें हेड में असाइन कर रहे हैं। यहाँ पर पीटीआर का वैल्यू हेड में असाइन कर रहे हैं। यहाँ पर देखो 400 को यहाँ पर लिखें, समझ में आया? So this is the structure you see, struct node, int data, struct node, star next. So this is data field and this is the pointer to the next field, pointer to the next node. Okay, this is the next field or pointer field which contains address of the next node. This pointer next will contain address of the next node, right? और यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ देखो, और एक पॉइंटर वेरिएबल यहाँ पर मैंने बनाया है। तो किस टाइप का है पॉइंटर वेरिएबल? इस नोड टाइप का। और ये कौन सा? हेड पॉइंटर। देखो स्ट्रक्ट नोड स्टार हेड, ठीक है ना। सो इस हेड में क्या करूँगा ना, पहले नोड का एड्रेस हेड में मैं रखूँगा, ठीक है। ये है स्ट्रक्चर। और ये जो नेक्स्ट है, नेक्स्ट में नेक्स्ट नोड का एड्रेस रहेगा। पहले नोड का एड्रेस हेड में रहेगा, नेक्स्ट नोड का एड्रेस यहाँ पर रहेगा नेक्स्ट पॉइंटर में, ठीक है। तो पहले क्या करना है, allocate the space for new node and store data into the data part of the node। अगर न्यू नोड, ये वाला नोड हमें इंसर्ट करना है इस लिंक लिस्ट में, तो इस न्यू नोड को तो बनाना पड़ेगा ना। तो बनाने के बाद उसको मेमोरी भी एलोकेट करना पड़ेगा। तो देखो यहाँ पर कैसे मेमोरी एलोकेट कर रहे हैं। देखो मैलोक फंक्शन यूज करके मेमोरी एलोकेट कर रहे हैं इस न्यू नोड को। देखो मैलोक साइज ऑफ, ये मैलोक फंक्शन तुम्हें समझ में आ रहा है ना? मैलोक फंक्शन, मैलोक फंक्शन का ये सिंटैक्स है मैलोक, और इसमें तुम्हें पास करना है साइज, ठीक है ना। कितना मेमोरी तुम्हें एलोकेट करना है वो पास करना है। तो हमें मेमोरी चाहिए एक नोड के लिए, ठीक है ना। तो नोड के लिए इसलिए स्ट्रक्ट नोड स्टार यहाँ पर लिखे, साइज ऑफ स्ट्रक्ट नोड स्टार। ओके, तो और यहाँ देखो, और ये जो रिटर्न कर रहा है एड्रेस, मेमोरी एलोकेट करने के बाद ये उस ब्लॉक का स्टार्टिंग एड्रेस रिटर्न करेगा, और उसको फिर टाइप कास्ट हम कर रहे हैं क्योंकि वो रिटर्न कर रहा है वॉइड पॉइंटर, इसलिए उसको टाइप कास्ट करना पड़ेगा जैसे तुम यूज करना चाहते हो। तो हमें उसका नोड के हिसाब में यूज करना है, इसलिए स्ट्रक्ट नोड स्टार हम टाइप कास्ट कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, ये हो गया नोड यहाँ पर बना लिए। बनाने के बाद इसका एड्रेस ये रिटर्न कर रहे हैं, और उसको कहाँ पे रख रहे हैं नया नोड का एड्रेस को? देखो पीटीआर में रख रहे हैं, स्ट्रक्ट नोड स्टार पीटीआर इक्वल टू दिस। तो पीटीआर में हमने एड्रेस रख दिया उसका,
नोड का, ठीक है ना। तो अभी देखो पीटीआर में डेटा कैसे रखोगे, यहाँ पर ये यहाँ डेटा असाइन कर रहे हैं, पीटीआर एरो मार्क डेटा इक्वल्स टू आइटम यहाँ पर, ठीक है। ये हो गया पहला स्टेप में, हमने ये नोड बना लिया और नोड में यहाँ डेटा असाइन कर लिया, ठीक है। दूसरा स्टेप में क्या करना है, देखो मेक द लिंक पार्ट ऑफ द न्यू नोड पॉइंटिंग टू द एग्जिस्टिंग फर्स्ट नोड ऑफ द लिस्ट। मतलब ये पॉइंट करेगा इसको, तो कैसे करेंगे, देखो पीटीआर नेक्स्ट इक्वल्स टू हेड, पीटीआर नेक्स्ट इक्वल्स टू हेड। अभी ये वाला जो नेक्स्ट फील्ड में क्या रहेगा, इसका एड्रेस रहेगा। तो इसका एड्रेस ओरिजिनली कहाँ पे था, पहले इसका एड्रेस यहाँ पे था, बस उसको असाइन कर लिया यहाँ पे पीटीआर और मार्क नेक्स्ट इक्वल्स टू हेड। तो यहाँ पर इसका एड्रेस हम रख दिए, ठीक है ना। उसके बाद क्या करना है, ये हेड में रखना है इस नोड का एड्रेस। इस नोड का एड्रेस कहाँ पे है, पीटीआर में है, पीटीआर में है इस नोड का एड्रेस। अब उसको असाइन कर दो हेड में, देखो हेड इक्वल्स टू पीटीआर, मेक द न्यू नोड एज द फर्स्ट नोड। समझ में आया? यस सर। हाँ, यस सर। okay, very good. Okay, so these are the steps to insert a new node at the beginning of a linear linked list or singly linked list. So first step is allocate memory for the new node, and second step is if memory not available then print overflow and exit, ठीक है ना। ये देखो यहाँ पर हमने जो ये मेमोरी एलोकेट करने को कर रहे हैं, यहाँ पर देख रहे हो ना, मैलॉक फंक्शन यूज करके मेमोरी एलोकेट कर रहे हैं ये नया नोड के लिए। अगर मेमोरी अवेलेबल नहीं है कंप्यूटर में तो ये मेमोरी एलोकेट नहीं होगा, ये एक एरर मैसेज देगा, मतलब नल वैल्यू रिटर्न करेगा, ये नल वैल्यू रिटर्न करेगा मैलॉक फंक्शन, अगर मेमोरी एलोकेट नहीं है। तो तब हमें ये मैसेज प्रिंट करना है, ओवरफ्लो। इफ मेमोरी नॉट अवेलेबल देन प्रिंट ओवरफ्लो, मतलब मेमोरी नहीं है अवेलेबल, देन एग्जिट कर जाओ, ठीक है। तो ये अगर नल रिटर्न करेगा मतलब है कि मेमोरी अवेलेबल नहीं है। मैलॉक फंक्शन नल रिटर्न करता है जब मेमोरी अवेलेबल नहीं रहता है, ठीक है ना। तो तब हम प्रिंट कर सकते हैं ओवरफ्लो मैसेज। एल्स, एल्स मतलब क्या, ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुआ, मतलब मेमोरी अवेलेबल है तो नोड बन गया, ठीक है ना। तो नोड जब बन गया, अब डेटा स्टोर कर दो उस नोड में, स्टोर डेटा इन द न्यू नोड, ठीक है ना। न्यू नोड बन गया, स्टोर डेटा इन द न्यू नोड। देन क्या करना है, चेंज नेक्स्ट फील्ड ऑफ द न्यू नोड टू पॉइंट टू द हेड, बिकॉज हेड में जो फर्स्ट नोड पहले था उसका एड्रेस हेड में है, तो उसको इसमें असाइन कर लो। देन नेक्स्ट क्या करना है, चेंज हेड टू पॉइंट टू द रिसेंटली क्रिएटेड नोड, ठीक है। तो ये है स्टेप्स, ये है एल्गोरिथम। सर हम कैलॉग फंक्शन नहीं यूज कर सकते? हाँ कर सकते हो, मैलॉक यूज कर सकते हो, कैलॉग भी यूज कर सकते हो, ओके। तो देखो ये है एल्गोरिथम टू इंसर्ट ए न्यू नोड एट द बिगिनिंग ऑफ ए लीनियर लिंक लिस्ट और सिंगली लिंक लिस्ट, ओके। सो पहले क्या करना है, चेक करना है ओवरफ्लो कंडीशन क्या है, इफ पीटीआर इक्वल्स टू नल। पीटीआर क्या है, पीटीआर इज ए पॉइंटर दैट स्टोर्स एड्रेस ऑफ मेमोरी एलोकेटेड फॉर न्यू नोड, है कि नहीं। जो न्यू नोड हमने बनाया है, ठीक है, न्यू नोड बनाने के बाद उसका एड्रेस कहाँ पे रख रहे हैं, पीटीआर में। तो अगर न्यू नोड बनता है तो अच्छी बात है, अगर नहीं बनता है तो मैलॉक फंक्शन नल रिटर्न करेगा। तो चेक कर लो यहाँ पे, अगर वो नल है तो क्या करना है, वो ये मैसेज प्रिंट करना है कि ओवरफ्लो मैसेज, ठीक है ना। सो नोड नहीं बन सकता ओवरफ्लो। अगर ये नहीं हो रहा है मतलब मेमोरी अवेलेबल है और नोड बन गया, तो नोड बन जाने के बाद क्या करते हैं, देखो सेट न्यू नोड इक्वल्स टू पीटीआर। ये न्यू नोड क्या है, न्यू नोड इज ए पॉइंटर टू न्यू नोड। हम न्यू नोड और एक पॉइंटर यूज कर रहे हैं न्यू नोड के लिए, ठीक है। तो न्यू नोड में हमने क्या किया, जो अभी नोड बनाया था, नोड नया नोड हमने बनाया उसका एड्रेस पीटीआर में रखे हैं, उसको न्यू नोड में असाइन कर लिए, सेट न्यू नोड इक्वल्स टू पीटीआर। तो न्यू नोड में अभी क्या है, इज ए पॉइंटर टू न्यू नोड। तो न्यू नोड में अभी जो हमने नया नोड बनाया उसका एड्रेस इसमें रख लिया, ठीक है। अब नया नोड हमने बना लिया, किसके नाम से, न्यू नोड के नाम से। अब न्यू नोड में डेटा यहाँ असाइन कर लें, देखो न्यू नोड आरो डेटा इक्वल्स टू वैल, वैल क्या है, डेटा, वैल इज ए डेटा वैल्यू टू इंसर्ट। तो डेटा यहाँ पर इंसर्ट कर लिया। उसके बाद क्या करेंगे ना, ये जो नया नोड हमने बनाया ये क्या करेगा, जो पहला नोड था उसको पॉइंट करेगा। तो पहले जो पहला नोड था उसका एड्रेस कहाँ पे, हेड पे है, तो उसको यहाँ असाइन कर रहे हैं, देखो न्यू नोड आरो नेक्स्ट इक्वल्स टू हेड, ठीक है, ये असाइन हो गया। देन उसके बाद क्या करना है,
हेड पॉइंट करेगा किसको, अभी जो नया नोड हम बनाए उसको हेड पॉइंट करेगा। देखो सेट हेड इक्वल्स टू न्यू नोड, समझ में, ये हेड अभी इसको पॉइंट कर लेगा न्यू नोड, देन एग्जिट। ये एल्गोरिथम समझ में है? हाँ सर। हाँ Yes, समझ sir. में, ओके ओके फाइन। So now we'll see the C function for this. C function to insert a new node at the beginning of a linear linked list or singly linked list. Okay. तो ये है C function, void begin insert int item. Okay. तो जो आइटम क्या है, जो डेटा हम इंसर्ट करना चाहते हैं न्यू नोड में, ठीक है ना, न्यू नोड बनाना है और उस न्यू नोड में ये आइटम डेटा इंसर्ट करना है और उस न्यू नोड को बिगिनिंग में रखना है लिंक लिस्ट का, ठीक है। तो देखो कैसे कर रहे हैं। तो पहले न्यू नोड बनाना पड़ेगा, है कि नहीं, पहले न्यू नोड बनाना पड़ेगा, न्यू नोड को मेमोरी एलोकेट करना पड़ेगा। तो कैसे करें, मैलोक फंक्शन यूज करके। और ये स्ट्रक्चर मैंने यहाँ पर देखो, ये है स्ट्रक्चर, इसी स्ट्रक्चर में है डेटा है और पॉइंटर टू नेक्स्ट फील्ड भी है, ठीक है। देखो मैं मेमोरी एलोकेट कैसे कर रहा हूँ मैलोक फंक्शन यूज करके, ये वाला, ये तो मैंने तुमको एक्सप्लेन किया है मैलोक फंक्शन प्रीवियस स्लाइड में। तो ये मैलोक फंक्शन यूज करके मेमोरी एलोकेट हो गया नए नोड के लिए। और नए नोड का एड्रेस कहाँ रखे हैं, देखो पीटीआर में रखे हैं नए नोड का एड्रेस को, ठीक है। नए नोड का एड्रेस को हम पीटीआर में रखे हैं, देखो ये नया नोड बन गया। हाँ इन दिस केस हम जब कैटलॉग फंक्शन यूज करेंगे हाँ तो हम साइज को तो फिक्स रखेंगे ना, क्योंकि हम साइज को एंटर करना पड़ेगा, इनपुट लेना पड़ेगा। कैलॉग, अगर कैलॉग मैलॉग में डिफरेंस क्या है, कैलॉग में 2 आर्गुमेंट पास करना पड़ता है, मैलॉग में एक ही आर्गुमेंट, ठीक है, ठीक है कि नहीं, डिफरेंस क्या है कैलॉग मैलॉग में। कैटलॉग में सर एक साइज को हम इनपुट करने पड़ते हैं सर, मिनिमम साइज। और हाँ दोनों में साइज देते हो, लेकिन उसमें कैलॉग में 2 आर्गुमेंट पास करते हो, ठीक है ना। मतलब एक डेटा के लिए कितना और कितना डेटा यूज के लिए मेमोरी एलोकेट करना है, और टोटल दोनों भेज दो उसमें। लेकिन इसमें एक एक भेज रहे हो साइज, मतलब एक ही आर्गुमेंट पास कर रहे हो मैलॉग कैलॉग में, ठीक है। तो मैलॉग कैलॉग के अंदर डिफरेंस तुम देख सकते हो, और पॉइंटर में अगर डाउट है तुम्हारा तो वो भी तुम देख सकते हो। So I'll do one thing, I'll create another video for pointer and malloc calloc function, you can watch that, okay। तो अभी यहाँ पे देखो ये malloc फंक्शन यूज करके हम नया नोड बना लिए, नया नोड को मेमोरी एलोकेट कर लिए और उसका एड्रेस पीटीआर में रख लिए, ठीक है। और अभी चेक करो ये जो नया नोड बना है कि नहीं। नया नोड बनेगा अगर मेमोरी एलोकेट, मेमोरी है तो बनेगा, अगर मेमोरी नहीं है तो क्या करेगा, नया नोड नहीं बनेगा, मेमोरी एलोकेट नहीं होगा, तो ये क्या करेगा, ये नल वैल्यू रिटर्न करेगा मैलोक फंक्शन। अगर मेमोरी अवेलेबल नहीं है तो मैलोक फंक्शन क्या करेगा, नल वैल्यू रिटर्न करेगा। तो यहाँ पर चेक कर लो, इफ पीटीआर इक्वल्स टू नल, पीटीआर इक्वल्स टू नल है, मतलब मेमोरी एलोकेट नहीं हुआ तो नोड नहीं बना, तो ये ओवरफ्लो मैसेज प्रिंट कर सकते हो, प्रिंट एफ ओवरफ्लो, ठीक है ना। एल्स अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, मतलब नल नहीं है, मतलब मेमोरी एलोकेट हो गया और ब्लॉक का एड्रेस जो मेमोरी ब्लॉक नोड बन गया है उसका एड्रेस आके पीटीआर में रह गया है, ठीक है ना। तो अगर एड्रेस है तो ये सेटिस्फाई नहीं करेगा, पीटीआर नल नहीं है, तो एड्रेस है तो इधर आ जाओ एल्स पार्ट में, पीटीआर आर ओ डेटा इक्वल्स टू आइटम, जो डेटा फील्ड जो नोड हमने बना लिया उसका 2 फील्ड है, एक डेटा फील्ड, दूसरा आ गया नेक्स्ट फील्ड। तो पीटीआर डेटा आइटम हमने असाइन कर लिया इसको, आइटम क्या है, ये वाला आइटम जो यहाँ पर, ठीक है ना, जो इसको कॉल करोगे जब बिग बिग इंसर्ट तभी ये डेटा पास करना है और डेटा इधर आ जाएगा यहाँ पर आइटम में, तो आइटम यहाँ पर इसको असाइन कर लिया। और उसका नेक्स्ट फील्ड जो हो जाएगा नोड का पीटीआर नेक्स्ट, देखो पीटीआर नेक्स्ट, पीटीआर डेटा ये वाला आइटम और पीटीआर नेक्स्ट ये वाला, पीटीआर नेक्स्ट ये क्या कर रहे हैं, हेड में इक्वल्स टू हेड, ठीक है ना। हेड क्या है ना, हेड में फर्स्ट नोड का एड्रेस है वो इसको असाइन कर लिया। देन क्या करना है, हेड किसको पॉइंट करेगा, ये अभी जो पहला नोड बना है इसको, सो हेड इक्वल्स टू पीटीआर, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद खाली एक मैसेज प्रिंट किए, printf node inserted। So this is the C function
to insert a new node at the beginning of a linear linked list or singly linked list. If you get question to write C function, then you can write from here to here. Okay. And along with this, you can also write this one. This structure you can write. You may or may not write this structure. Okay. But if you write, that's good. Okay. खाली इतना ही लिखने से चलेगा, यहाँ से लेके यहाँ तक समझ में आया? ये है तुम्हारा फंक्शन to insert a new node at the beginning of a linear linked list. Any question? Any question, students? No, sir. No, sir. Okay, good. Okay. Now we'll discuss the next case, that is insert at the end. Okay, insert at the end of the singly linked list. And here also two scenarios are there. First scenario is the node is being added to an empty list. अगर linked list empty है कैसे पता चलेगा बताओ मुझे? Linked list. Sir, if head equals to null. Yes, if head is null, then that means the linked list is empty. Okay. तो अगर empty है तो तुम्हें न्यू नोड जब ऐड करोगे तुम तो कहाँ पे ऐड करोगे? It will become first node. है कि नहीं? Yes, sir. Yes, sir. अगर empty है, कुछ नोड नहीं है और तुम्हें एक नोड ऐड करना है, उसमें एंड में ऐड करना है, एंड तो वही पहला नोड हो जाएगा ना, ये वाला. ठीक है ना? So the node is being added to an empty list. This is the first case. Then second is the node is being added to the end of the linked list. जो एग्जिस्टिंग लिंक लिस्ट है तुम्हें उसके एंड में ऐड करना पड़ेगा. ठीक है ना? दो केसेस है. ओके, ये हो गया तुम्हारा पहला केस. देखो, इंसर्ट नोड इनटू एम्प्टी लिस्ट. ये हो गया न्यू नोड. ठीक है ना? तो पहले हेड का वैल्यू नल था, अभी हेड किसको पॉइंट करेगा? इस नोड को पॉइंट करेगा. और इस नोड का एड्रेस कहाँ पे? देखो पीटीआर में रखा है मैंने इसका एड्रेस. ये नया नोड तो तुम्हें बनाना है ना, ये नया नोड जब बनाओगे उसका एड्रेस कहाँ पे रख रहे हो? पीटीआर में रख रहे हो. तो मैं हेड में रखूंगा पीटीआर. पीटीआर में क्या इसका एड्रेस है, और ये मैं इसको असाइन कर लूंगा तो ये इसको पॉइंट कर लेगा. ठीक है ना? और ये हो गया तुम्हारा अभी पहला नोड, क्योंकि पहले कुछ भी नोड नहीं था, एम्प्टी था. दिस द फर्स्ट एंड लास्ट नोड. ये पहला नोड भी है, लास्ट नोड भी है. और इसका यहाँ पर डेटा तुम इंसर्ट करोगे यहाँ पर डेटा फील्ड में, और इसका जो पॉइंटर टू नेक्स्ट फील्ड में यहाँ पर क्या रहेगा बताओ? क्या रहेगा यहाँ पर? Sir, null. नल रहेगा. नल तुम्हें असाइन करना पड़ेगा यहाँ पे. ठीक है? सो ये हो गया तुम्हारा पहला केस, फर्स्ट केस. देन सेकंड केस इज दिस वन. सेकंड केस क्या होता है? तुम्हें पूरा एंड में ऐड करना है. सेकंड केस में क्या है? ऑलरेडी एक लिंक लिस्ट है, उसमें कुछ नोड्स हैं, तो तुम्हें लिंक लिस्ट में पूरा एंड तक जाना पड़ेगा. लास्ट नोड को जाना पड़ेगा और वहां पे लास्ट नोड में तुम्हें ऐड करना पड़ेगा ये न्यू नोड, लास्ट नोड के बाद. ठीक है? ये देखो, इसमें यहाँ पे ये हमारा एक लिंक लिस्ट है और इसमें दो नोड थे पहले. देखो ये पहला नोड, ये दूसरा नोड है, और ये जो दूसरा नोड ये एंड लास्ट नोड था पहले. देखो यहाँ पर देखो, क्रस मतलब दिस इज द लास्ट नोड, पहले था. लेकिन अभी हमें क्या करना है? एक नया नोड यहाँ ऐड करना है एंड में, इस लिंक लिस्ट के एंड में न्यू नोड ऐड करना है. तो कैसे ऐड करोगे? तो यहाँ पर हमने ऐड कर लिया. पहले तो ये नोड को बनाएंगे, बनाने के बाद इसको यहाँ पर इंसर्ट करेंगे. तो इंसर्ट जब करोगे उसका मतलब क्या है? ये जो पहले जो ये लास्ट नोड था, इसका पॉइंटर टू नेक्स्ट फील्ड क्या था? पहले नल था, लेकिन अभी नल नहीं रहेगा. ये पॉइंटर टू नेक्स्ट फील्ड, इसका जो ये वाला फील्ड में क्या रहेगा बताओ? यहाँ क्या रहेगा? हाँ, Address of the new node. यस, एड्रेस ऑफ द न्यू नोड यहाँ पे रहेगा. और ये एड्रेस ऑफ द न्यू नोड इसका कहाँ पे, किस में है? PTR में है sir. पीटीआर में. अब इसको यहाँ पीटीआर यहाँ असाइन कर लो, हो जाएगा. ठीक है ना? और ये जो ये नया नोड है, ये वाला नया नोड है, इसका जो पॉइंटर टू नेक्स्ट ये क्या होगा? Null. नल हो जाएगा, क्योंकि ये अभी लास्ट नोड है. ठीक है? और यहाँ पर तुम डेटा इंसर्ट कर सकते हो. तो दिस इज इंसर्टिंग नोड एट द लास्ट इनटू ए नॉन एम्प्टी लिस्ट. ये नॉन एम्प्टी लिस्ट है. ठीक है ना? लेकिन ये वाला एम्प्टी लिस्ट है. समझ में है? और ये वाला कैसे कर रहे हैं देखो,
अच्छा, तुम्हें जो यहाँ पर हम लोग इंसर्ट कर रहे हैं इस नोड को, न्यू नोड को लास्ट में इंसर्ट कर रहे हैं, अभी लास्ट तक कैसे पहुंचोगे? यहाँ तक तो आना पड़ेगा ना, यहाँ कैसे आओगे? यहाँ तक सर आना तो पड़ेगा ना। ये आरे नहीं है कि तुम पूरा लास्ट तक चले जाओगे इंडेक्स यूज करके आरे का। समझ में आ रहा है मेरी बात? अगर आरे होता तो तुम आरे का इंडेक्स यूज करके लास्ट तक, मान लो आरे में टोटल साइज है n, तो लास्ट इंडेक्स n-1 वहां जाओगे तो आरे का एंड तक पहुंच गए। लेकिन यहाँ पर कैसे पहुंचोगे मुझे बताओ, बता सकते हो? लिंक लिस्ट में कैसे पहुंचोगे लास्ट को? लास्ट एक लिंक लिस्ट का लास्ट कैसे पता चलता है, बताओ मुझे। ये क्वेश्चन मैंने सर, पूछा था। हाँ लास्ट नॉन नल वैल्यू तक ट्रैवर्स करना पड़ेगा। हाँ, हमें पूरा ट्रैवर्स करना पड़ेगा पूरा लास्ट नोड तक, ठीक है ना। और लास्ट नोड कौन सा है हमें कैसे पता चलेगा? क्योंकि लास्ट नोड का जो पॉइंटर टू नेक्स्ट फील्ड जो वैल्यू होता है वो नल होता है, ठीक है ना। तो हमें यहाँ तक आने के लिए वो कंडीशन चेक करना पड़ेगा। तो यहाँ तक आएंगे कैसे? शुरू कहाँ से करें? ट्रैवर्स तो करना पड़ेगा। और ट्रैवर्स कहाँ से कहाँ तक करें हमें बताओ? हेड से नॉन हेड से करना हेड पड़ेगा। टू टेल। हेड से शुरू करके टेल तक जाना पड़ेगा, ठीक है ना। लास्ट नोड को टेल भी बोलते हैं, लास्ट नोड को टेल भी बोलते हैं, ठीक है। तो हेड से शुरू करना पड़ेगा क्योंकि हमें पता नहीं है नोड मतलब कहाँ पे है, ठीक है ना, नल वैल्यू कहाँ पे है। तो इसलिए हेड से शुरू करना पड़ेगा। और सभी नोड का नेक्स्ट फील्ड जो है, पॉइंटर टू नेक्स्ट फील्ड, उसको चेक करना पड़ेगा कि वो नल है कि नहीं। अगर नल है तो वो हम पहुंच गए, दैट इज द लास्ट नोड। अगर नल नहीं है तो क्या करेंगे? फिर दूसरे नोड को जाना पड़ेगा। समझ में आ रहा है आपकी नहीं? तो इसको पॉइंटर यूज करके हमें करना पड़ेगा, पॉइंटर, ठीक है। तो मान लो एक पॉइंटर, टेम्पररी पॉइंटर हम यहाँ पर यूज कर रहे हैं, वो टेम्पररी पॉइंटर है टेम्प। टेम्प इज द टेम्पररी पॉइंटर, ठीक है। ये है टेम्प, टेम्पररी पॉइंटर है। तो ये टेम्प को हम कहाँ से शुरू करेंगे? ये टेम्प को यहाँ से शुरू करेंगे, पहले नोड से। यहाँ से टेम्प पॉइंट करेगा किसको? पहले नोड को पॉइंट करेगा टेम्प। ये टेम्प हमें एक पॉइंटर बनाना है। ये टेम्प किस टाइप का पॉइंटर होगा बताओ मुझे। सर स्ट्रक्ट नोड। यस, ये स्ट्रक्ट नोड का पॉइंटर होगा क्योंकि इसमें टेम्प में हमें सभी नोड का एड्रेस स्टोर करके रखना है, सभी नोड का एड्रेस स्टोर करके रखना है और उसको चेक करना है वो नल है कि नहीं। समझ में है? नोड का एड्रेस रखना है, इसलिए स्ट्रक्ट नोड टाइप का होगा पॉइंटर। तो पहले इसमें टेम्प में क्या रखेंगे? हमें पूरा पहले से फर्स्ट से लेकर लास्ट तक ट्रैवर्स करना है, विजिट करना है। तो फर्स्ट नोड का एड्रेस किस में है? हेड हेड में हेड में है। हेड तो टेम्प इक्वल टू हेड करना पड़ेगा और चेक करना पड़ेगा। टेम्प इक्वल टू हेड कर लिया मतलब क्या है? अभी टेम्प किसको पॉइंट करेगा? जब हम लिखते हैं टेम्प इक्वल टू हेड, टेम्प किसको पॉइंट कर रहा है? फास्ट नोड। फर्स्ट नोड को। अच्छा, फर्स्ट नोड का जो पॉइंटर टू नेक्स्ट फील्ड, उसको हमें चेक करना है वो नल है कि नहीं, है कि नहीं। तो फर्स्ट नोड का पॉइंटर टू नेक्स्ट फील्ड टेम्प के थ्रू कैसे एक्सेस करेंगे बताओ? फर्स्ट नोड का पॉइंटर टू नेक्स्ट फील्ड, फर्स्ट नोड में दो फील्ड है ना, डेटा फील्ड, पॉइंटर टू नेक्स्ट फील्ड। तो डेटा फील्ड को कैसे एक्सेस करते हैं? टेम्प आरो मार्क डेटा। नेक्स्ट टेम्प आरो मार्क डेटा मतलब है डेटा फील्ड। और ये नेक्स्ट फील्ड को कैसे एक्सेस करें? टेम्प एरो मार्क नेक्स्ट। यस, टेम्प आरो मार्क नेक्स्ट, ठीक है। तो ऐसे करते करते टेम्प आरो मार्क नेक्स्ट हमें चेक करना है वो नल है कि नहीं, ठीक है ना। ओके, तो ऐसे करके पूरा लास्ट तक आना है। तो अभी देखो यहाँ पे, अच्छा ये हो गया तुम्हारा फर्स्ट केस में जो कि हमने इंसर्ट कर लिया था, ठीक है। ये हमने डिस्कस कर लिया ऑलरेडी। ओके, फर्स्ट केस में क्या किया देखो, अलोकेट स्पेस किए नोड को और ये उसको असाइन कर लीजिए, हम डिस्कस कर ये वाला देखो सेकंड केस। तो सेकंड केस में देखो टेम्प नेक्स्ट इक्वल्स टू पीटीआर। अच्छा, टेम्प देखो हम पूरा ऐसे विजिट करते करते टेम्प कहाँ तक आ गए? पूरा लास्ट तक, यहाँ तक आ गए, आए कि नहीं। टेम्प पहले हेड को पॉइंट किया था और हमने हेड को यहाँ टेम्प नेक्स्ट चेक किया, नल है कि नहीं। नल नहीं है क्योंकि यहाँ पे इसका एड्रेस है। तो फिर क्या करेंगे? टेम्प इक्वल टू टेम्प नेक्स्ट करेंगे। टेम्प
टेम्प इक्वल्स टू टेम्प आरो मार्क नेक्स्ट फिर से करना पड़ेगा, इधर आ जाएगा, फिर इसको पॉइंट करेगा टेम्प, है कि नहीं? टेम्प पहले इसको पॉइंट करता था, अभी इसको पॉइंट करेगा, इसका एड्रेस टेम्प में रखना है, फिर इसको चेक करना है इसको, ठीक है ना? और इसको चेक करेंगे, देखो ये यहाँ पर नल होगा क्योंकि पहले ओरिजिनली यहाँ पर नल था, ये लास्ट नोड था। तो जब यहाँ पहुँच जाएंगे, यहाँ पहुँचने के बाद क्या करना है, अब यहीं पे ऐड करना है न्यू नोड। तो कैसे न्यू नोड ऐड करोगे, ये हो गया न्यू नोड, ये न्यू नोड का एड्रेस किस में है, पीटीआर में, ये न्यू नोड का एड्रेस किस में, पीटीआर में है। तो देखो टेम्प आरो मार्क नेक्स्ट इक्वल टू पीटीआर कर लिया, हम पूरा ट्रैवर्स करते करते इधर आगे लास्ट तक पहुंच गए और लास्ट नोड का एड्रेस टेम्प में रखे हैं अभी, ठीक है ना? तो अभी न्यू नोड ऐड करेंगे, न्यू नोड का एड्रेस किस में, पीटीआर में है। तो अभी ये वाला टेम्प पॉइंट करेगा किसको, इसको न्यू नोड को। तो कैसे करें, टेम्प नेक्स्ट इक्वल्स टू पीटीआर, टेम्प नेक्स्ट, ये यहाँ तक पहुंच गए, इस नोड का एड्रेस अभी टेम्प में है, तो इसका जो नेक्स्ट फील्ड है, पॉइंटर टू नेक्स्ट फील्ड, यहाँ पे क्या करना है, इस नोड का एड्रेस रखना है, इस नोड का एड्रेस रखना है यहाँ पे। तो ये जो इस नोड का पॉइंटर टू नेक्स्ट फील्ड में क्या करना है, इस नोड का एड्रेस रखना है। तो अभी इस नोड का पॉइंटर टू नेक्स्ट फील्ड, ठीक है, उसको कैसे एक्सेस करें, टेम्प के थ्रू बताओ। सर टेम्प एरो मार्क नेक्स्ट इक्वल्स पीटीआर। यस, टेम्प एरो मार्क नेक्स्ट इक्वल टू पीटीआर कर लिए, पीटीआर में इसका एड्रेस कर लिए, और ये लास्ट नोड है, और इसका जो ये वाला होगा पॉइंटर टू नेक्स्ट फील्ड, ये नल होगा, ठीक है ना? तो इसका ये वाला वैल्यू को नल कैसे करें, इसका ये जो ये वाला नेक्स्ट फील्ड है इस नोड का, तो इस नोड का ये वाला इस फील्ड को कैसे एक्सेस करें, पीटीआर के थ्रू करना पड़ेगा, क्योंकि पीटीआर में इसका एड्रेस है। सो पीटीआर आरो नेक्स्ट इक्वल टू नल, ये कर लिया। समझ में आया कि नहीं? हाँ सर। ये देखो ये स्ट्रक्चर है, और allocate the space for new node and store data into the data part of the node। देखो ये मेमोरी allocate किए और डेटा पार्ट में डेटा रख लिए। उसके बाद क्या करना है, एक टेम्पररी पॉइंटर लेना है। देखो टेम्पररी पॉइंटर टेम्प इज मेड टू पॉइंट द फर्स्ट नोड ऑफ द लिस्ट। ओके, टेम्पररी पॉइंटर ले रहे हैं, टेम्प पहले नोड को पहले पॉइंट कर रहे हैं, ठीक है ना? देन ट्रैवर्स थ्रू द एंटायर लिंक लिस्ट, पूरा एंटायर लिंक लिस्ट को ट्रैवर्स कर रहे हैं। एट द एंड ऑफ द लूप, ठीक है ना, द टेम्प विल, ये वाला लूप यूज करके ट्रैवर्स करना है, ठीक है ना? लूप यूज करेंगे जब तक नॉल तक नहीं पहुंचते, ठीक है ना? तो टेम्प यूज करके हम पूरा ट्रैवर्स करेंगे, पूरा लास्ट नोड तक पहुंचेंगे, और ये लूप जब खत्म हो जाएगा हम पूरा पहुंच जाएंगे लास्ट नोड। एट द एंड ऑफ द लूप द टेम्प विल बी पॉइंटिंग टू द लास्ट नोड ऑफ द लिस्ट, लास्ट नोड को पॉइंट करेगा लूप जब खत्म हो जाएगा। देन क्या करना है, द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस नोड नीड टू बी पॉइंटिंग टू नल। ओके, ये जो हमने किया अभी, ठीक है? ये वाला देखो, टेम्प को हेड पहले पॉइंट किए, इनिशियलाइज किए, टेम्प इक्वल टू हेड कर लिए, जो कि पहले नोड को पॉइंट करेगा। देन देखो हम चेक कर रहे हैं, व्हाइल टेम्प आरो मार्क नेक्स्ट इज नॉट इक्वल्स टू नल, ये लूप चला रहे हैं। जब तक ये टेम्प आरो मार्क नेक्स्ट नॉट इक्वल्स टू नल ये कंडीशन ट्रू है, क्या कर रहे हैं, टेम्प इक्वल्स टू टेम्प आरो मार्क नेक्स्ट कर रहे हैं, मतलब नेक्स्ट नोड का एड्रेस इसमें टेम्प में रख रहे हैं, मतलब वी आर मूविंग टू द नेक्स्ट नोड। समझ रहे हो कि नहीं? ये हम पूरा जा रहे हैं, ट्रैवर्स कर रहे हैं, पूरा नेक्स्ट नोड करते करते पूरा एंड तक पहुंचेंगे, जब तक ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रहा है। और जब ये सेटिस्फाई हो गया मतलब हम लास्ट नोड में पहुंच गए। जब टेम्प आरो नेक्स्ट नॉट इक्वल्स टू नल जब तक रहेगा, ऐसे नेक्स्ट तक आते जाएंगे, और जब ये सेटिस्फाई कर लेगा मतलब हम पहुंच गए नेक्स्ट में, यहाँ पूरा लास्ट में पहुंच गए, ये वाला, समझ रहे ना? और लास्ट में पहुंचने के बाद क्या करना है, ये वाला टेम्प नेक्स्ट, टेम्प आरो मार्क नेक्स्ट इक्वल्स टू पीटीआर करना है ये वाला, एंड देन पीटीआर आरो मार्क नेक्स्ट इक्वल नल करना है। ये दो स्टेटमेंट लाइन है, इसको ये समझ में आया? तो सर हम बार बार क्यों टेम्प वेरिएबल को लेते हैं सर, हम हेड को लेते तो कर सकते हैं ना? क्या हम टेम्प वेरिएबल को क्यों लेते हैं सर? इसलिए लेते तो हैं कि हम हेड को हर घड़ी हम फिक्स रखते हैं, क्योंकि हेड फर्स्ट नोड को पॉइंट करेगा। अगर हम हेड में चेंज करेंगे तो हेड का वैल्यू चेंज हो जाएगा, इसलिए एक टेम्पररी वेरिएबल टेम्प लेते हैं। हेड भी ले सकते हो, लेकिन हेड अगर मान लो तुम लेके फिर हेड इक्वल्स टू ऐसे लिखोगे, हेड इक्वल्स टू हेड आरो नेक्स्ट करोगे, तो हेड तो यहाँ तक आ जाएगा, लेकिन हमें हेड हर घड़ी इसको पॉइंट करना चाहिए, ये स्ट्रक्चर से छेड़खानी नहीं करना। ये लिंक लिस्ट का स्ट्रक्चर है जहाँ पे हेड हर घड़ी फर्स्ट नोड को पॉइंट कर रहा है। अगर हमें लास्ट नोड तक आना है पॉइंटर यूज करके, तो एक टेम्पररी वेरिएबल ले लो,
टेम्पररी पॉइंटर ले लो। समझ में आया कि नहीं? हेलो? Yes, sir. Okay. So this is the second case, and this is the algorithm to insert at the end of a linked list. Okay. देखो वही कर रहे हैं। if पहले पॉइंटर पीटीआर नया नोड बनाए और नया नोड allocate मेमोरी हुआ है कि नहीं वो चेक करें। ptr equals null, then write overflow. Okay, then go to step 9. It should be step 9. Okay, step 9 एग्जिट कर जाएगा। अगर नोड नहीं है तो एग्जिट, ठीक है ना। देन ओके, मतलब अगर मेमोरी नहीं है तो अलोकेट नहीं होगा, नोड नहीं बन सकता, ठीक है, एग्जिट कर जाएगा। और अगर मेमोरी अवेलेबल है तो नोड बन सकता है, और नोड मान लो बन गया और बनने के बाद पीटीआर में उसका एड्रेस है, ठीक है। तो अभी हमने क्या किया, देखो यहाँ पे नया नोड करके न्यू नोड करके एक पॉइंटर लिए हैं, उसमें ये जो पीटीआर जो नया नोड हमने बनाया उसका एड्रेस इसमें रख लिए। और यहाँ पर देखो सेट न्यू नोड डेटा वैल्यू हमने असाइन कर लिया, डेटा फील्ड में डेटा वैल्यू असाइन कर लिया। और ये नेक्स्ट फील्ड में नल कर लिए, क्योंकि ये लास्ट नोड होना करना है हमें, इंसर्ट एट द एंड ऑफ द लिंक लिस्ट। मतलब ये जो नया नोड हमने बनाया है ये लास्ट नोड होगा, तो लास्ट नोड का नेक्स्ट फील्ड हर घड़ी नल होता है, ये असाइन कर लिए। उसके बाद यहाँ क्या कर रहे हैं, देखो सेट टेम्प इक्वल्स टू हेड। अभी ट्रैवर्स करना है फर्स्ट से लेकर लास्ट तक, तो टेम्प एक वेरिएबल ले लिए, टेम्प इक्वल्स टू हेड कर लिए, पहला नोड को पॉइंट कर रहे हैं, ठीक है ना। देन रिपीट स्टेप 7, इस स्टेप 7 को रिपीट करेंगे व्हाइल टेम्प इक्वल टेम्प नेक्स्ट टेम्प आरो नेक्स्ट नॉट इक्वल्स टू। जब तक ये कंडीशन सेटिस्फाई करता रहेगा हम क्या करेंगे, इस ऐसे करते जाएंगे, टेम्प इक्वल्स टू टेम्प आरो मार्क नेक्स्ट करते जाएंगे, ठीक है ना। ऐसे करते करते जाएंगे पूरा, जब ये लूप खत्म हो जाएगा हम पूरा एंड में पहुंच जाएंगे। एंड में पहुंचने के बाद क्या करना है, सेट टेम्प आरो मार्क नेक्स्ट इक्वल्स टू पीटीआर। मतलब ये भी पॉइंट कर देगा पीटीआर को, जो पीटीआर में क्या है नया नोड का एड्रेस है, इसको पॉइंट कर लेगा, ठीक है ना। So this is the algorithm for insert operation at the end of the linear linked list. Okay, and this is the C function for insert operation at the end of the singly linked list. Okay, any question? Any question, students? No, sir. Okay, the time is over. We will discuss this C function in the next class. Okay, thank you.